Dean Student Welfare Sir, Chief Warden Sir, all the respected wardens, assistant wardens, residential wardens, all the hostel staff members and students. Good evening to everyone. Today, this slogan feels truly meaningful because the success of our inter-hostel tournament 2K26 was not built on dreams. It was built on discipline, dedication, teamwork, and continuous efforts. Today, our campus is not only just celebrating the sports, but also celebrating the spirit of our hostels. Sports teaches us something important, that winning is great, but participating with spirit is even greater. From badminton to esports and many more events, every hostel gave their best and made this tournament a grand success. And the most inspiring part is, all hostels participated with full enthusiasm, which truly reflects the strength and unity of our college hostels. I request all the dignitaries and students to please stand on their seats for the Saraswati Band. And on second position, we have Tanya Gupta from PGS. In badminton doubles, first position goes to Sigma Sonkar and Gauri from Satpura Girls Hostel. And on second position, we have Sania Gupta and Harshita Gupta from PGS. In table tennis singles, on first position we have Aparna from AGH. On second position we have Rhythm from SGH. In table tennis doubles, we have Aparna and Ojasvi from AGH as first position. On second position we have Rhythm and Sigma Sonkar from SGH. In chess, on first position we have Gayatri and Rhythm from SGH. And on second, we have Kashish and Ananya from PGS.
I request Director Sir to please come on the stage, and I request Chief Warden Sir to please felicitate Sir. पता नहीं कितने ना देख के नहीं मैंने चलता है I request Chief Warden Sir to please felicitate Dean Students Welfare Sir. Thank you so much, sir. Chief Warden Sir, we request. Stay on this. Now I request Chairman Mr. Krish Bhutani and Vice Chairman Ms. Deep Jyoti Kondal to kindly felicitate Chief Warden Sir. Now it's time to felicitate the people who work silently behind the success of each hostel. The ones who always supported students in every situation, maintained the discipline and guided us like our guardians. So now it's time to felicitate our respected wardens. First, I request the warden and assistant warden and residential warden of Himadri to kindly come forward. I request the wardens and assistant warden of Himgiri Boys Hostel to please come on the stage. Now I would like to request warden and assistant warden of Satpura to kindly come forward. Thank you so much, ma'am. Now we would like to felicitate the respected MMCA members of all the hostels who played and effective role in the smooth coordination and student sport. So I request the MMC of KBH to please come on the stage. I request the MMC of SGH to please come on the stage.
MC of Himgiri to please come on stage. MMC of PBH to please come on the stage. Thank you so much, sir. And Now I request Chief Warden sir to please take their seat and we request यहाँ पर उपस्थित डीन SW, चीफ वार्डन, सभी वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, MMC, अटेंडेंस, हॉस्टल स्टाफ, सभी पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स, आज जो यहाँ पे एक छोटा सा सभी का ये प्रॉब्लम है। स्पोर्ट एक जो हमारे करिकुलम का मतलब पढ़ाई के अलावा एक उसी का हिस्सा है या उसी का पार्ट है, और ये इसलिए जरूरी है। पढ़ाई तो जरूरी है, उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, गेम्स है, तो इसलिए ज़रूरी है कि दिमाग की बत्ती जलाता है, दिमाग का लाइट जलाती है स्पोर्ट्स। ये इसलिए दिमाग की बत्ती इसलिए जलाता है कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन की पर्टिकुलर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन। जब तक दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक आपका दिमाग में नहीं चलेगा। ये पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जैसे ही दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन होगा, बॉडी में सर्कुलेशन होगा, वैसे ही आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है इससे। और इसमें कभी कभी हम एक सोचते हैं कि ये बहुत होशियार है ये लड़का, हम इसके बराबर नहीं, हमें कुछ आता नहीं, ये सोच होती है। ऐसा कुछ ये हद तक तो ठीक है, ये डाउट नहीं है इसमें, लेकिन वो 1 घंटे में तैयारी करेगा, आपको 4 घंटे लगेगा, कोई बात नहीं। हार्ड वर्क कीजिए, उसके बराबर 4 घंटे करके हो जाएगा काम, उतना ही काम, इतना ही फर्क है। 1 आवर में करेगा काम, 4 घंटे में आप पढ़ाई करेंगे 1 घंटे, लेकिन आप कर पाएंगे 4 घंटे में। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, समझे? उसी को हार्ड वर्क करने 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा, अभी 4 घंटे लगेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 घंटे की आपके दिमाग के हिसाब से आप 4 घंटे, कोई हरकत नहीं। लेकिन आप वो 1 घंटे के टॉपर के बराबर 4 घंटे पढ़ाई करके आप पहुंच सकते हैं, 100% पहुंच सकते हैं। इसलिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है हिस्सा है। जैसा एक पेड़ लगाते हैं, आप क्या करते? कोई भी चीज करने से उसके फ्रूट आप इमीडिएट एक्सपेक्ट करते, कोई भी इमीडिएट नहीं होता। आज का जो फास्ट फूड का जमाना है ना, वो इंस्टेंट चाहिए, सब हर चीज इंस्टेंट। अरे भाई पहले पेड़ लगाओ। पेड़ कैसे लगाते हैं वो लोग जानते हैं। जो बीज होता है ना, बीज जमीन में लगाते, फिर पानी डालेंगे,
फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, उसकी शाखाएं बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, वो एक छाया देगी, पेड़ छाया देता है ना, छाया देगा, बड़ी बड़ी शाखा होगी, फिर साल बाद क्या आएगा, फूल आएगा, सुगंध आएगी फूलों की, बहुत बढ़िया दिखेंगे फूल, दिखेंगे ना। वैसे ही आप भी ग्रो होते जाएंगे, आपके जो पढ़ाई में है ग्रो होते जाएंगे, आप पे एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर एक दिन फल भी आ जाएंगे, फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आपको बताया, आपने एप्पल खाए होंगे, इधर किन्नौर वाले एप्पल बड़े टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे, उसकी लाइफ भी बहुत होती है, तो एक दिन आपको फल मिलेगा। लेकिन क्या हो गया अभी, फल हम इमीडिएट एक्सपेक्ट करते हैं, इमीडिएट कोई भी फल तो उसको टाइम, इसलिए पढ़ाई करते जाओ, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में भाग लेते जाओ। ठीक है, आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत है। हार जीत तो होती है, एक हारेगा एक जीतेगा, वो तो होना ही, हार जीत तो चलेगी, लेकिन जो फल आया है वो फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा, और फिर आपको मालूम है फ्रूट की क्या मजा आती है, इतनी खुशी होती है। फिर आप एक फ्रूट लगा के देखिए, जब वो आप बाजार से लाएंगे ना खरीद के, आप 500 रुपए पर केजी लाएंगे, कितना भी लेके आ जाएंगे, लेकिन जो घर में एक फल निकलेगा, उसकी जब खुशी होती है, वही फ्रूट आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, स्पोर्ट में आप कौन से ईयर के, आप शायद सेकंड ईयर के भी होंगे, थर्ड ईयर के भी, फाइनल ईयर के भी होंगे, सब स्टूडेंट्स यहाँ। तो एक्सरसाइज डेली कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स के हिसाब से कीजिए, नहीं तो रूम में भी कर सकते हैं। 1 बजे 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, क्या फायदा है इसके? आधा टाइम तो गप्पा टाइम पास में चला जाता है। ये चीज़ें कम से कम कीजिए। हम लोग जब कि आज भी हम लोग 9-10 बजे सो जाते, पहले भी 9-10 बजे हम स्टूडेंट्स थे, 9-10 बजे सो जाते थे पहले से ही। लेकिन हमारे जो टॉपर होते थे, हम तो कभी टॉपर नहीं रहे, लेकिन हमारे जो टॉपर है उनको मेहनत कम करना पड़ती थी, वो पढ़ लेते थे पहले, बाद में लोगों का टाइम पास करते हॉस्टल में, ये रूम के रूम में घूमते थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। वो देखते थे कि आपका टाइम कैसा बर्बाद हो, तो ये चाहते आपका टाइम बर्बाद हो, आप कैसा, आप रात में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई पहले होती, उसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो ये चाहता है कि आपका टाइम, आपको पता होगा आपके दोस्त लोग जरा, तो ये भी ख्याल में रखिए, सारी चीज़ें ख्याल में रख के आगे बढ़िए, और थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट जो हमारे भारत का स्वप्न है, विकसित भारत, उसकी तरफ भी ख्याल देंगे। लेकिन रातों रात कंपनी तैयार नहीं होती, स्टार्टअप स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए पहले से मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो आप स्टार्टअप करेंगे चालू और फेल हो जाएंगे, क्योंकि 95% 90% स्टार्टअप फेल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, हमारे पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, रीजन क्या है प्रोडक्ट का वो नहीं है, प्रोडक्ट को निकाल देते, चालू करते स्टार्टअप, बाद में हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट ऑफ नॉलेज, इनसफिशिएंट ऑफ एक्सपीरियंस। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कभी भी स्टार्टअप करने से उसकी तैयारी पहले से करना है, एक फाउंडेशन बनना है। एकदम से क्या होता है, स्टार्टअप चालू कर देते, एकदम जंप मार, जो जंप मारेगा उसको नीचे गिरेगा, जो एक सीढ़ी से चलेगा धीरे धीरे वो कभी गिरेगा। तो ये चीज़ें ख्याल में रखिए, और मैं आशा करता हूँ शायद आपने इस ग्रुप में सभी ने भाग लिया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। और Second position goes to Tanmay from KBH. Now in badminton doubles, first position goes to
Ayush Ghosh and Anshul from DVH. Second position goes to Tanmay and Pratyush from NBS. Now, in table tennis singles, first position goes to Prashna Kumar from UBH. Second position goes to Nitin Thakur from NBH. In table tennis doubles, first position goes to Himanshu Sharma and Rahul from KVH. In tug of war, on first position we have Himgiri Boys Hostel. Now in Rubik's Cube, the first position goes to Tanushka from AGS. On second position we have Gauri from SGH.